Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. So we are going to start with the new chapter, chapter number 4, that is decimals. 5 or 0.72, these are all the examples of decimals. So we are going to study about these things in detail in this chapter, that is chapter 4. So starting with decimal fraction. What is decimal fraction? A fraction whose denominator is 10, 100, 1000, etc. is known as decimal fractions. That is, if we have a fraction say 2 upon 10, or we have another fraction say 75 upon 100 or 2 upon 100 and so on. So fractions which have the denominator either 10 or 100 or 1000 or 1 upon 10,000 and so on, these fractions are known as decimal fractions, and this can be written as 0.2, this can be written as 0.75, this as 0.002 and so on. Okay, now the next thing that we'll come across are decimals. The numbers written in the decimal form are called numbers in decimal, that is decimals. Like if we need to consider examples, then we have 0.3, 2.8, 7.85 and so on. These are the examples of decimals. Now a decimal has two parts. See, in this question, the part before the decimal and the part after the decimal. So everywhere we'll have two parts for a decimal. The first one जो point के पहले होता है, that one is known as the whole number part. This one is the whole number part and the other one is known as the decimal part. Therefore decimal number is made up of two things, the whole number part and the decimal part. These we have to add and then we get the decimals. If there is no whole number part, like here we have whole number part as 2, but here we do not have any number, so here we are writing 0. The whole number part is 0, here we have 2 and here we have 7. The decimal part here is 3, decimal part is 8 and here we have 85. Also remember that whenever we write a decimal as such, we do not read it as 7.85. ऐसे नहीं पढ़ते हैं. How do we read? 7.85. यानी डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं दे आर स्पोकन स्पेसिफिकली, लाइक हम उनको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं, उनको सिर्फ क्या करते हैं, रीड करते हैं, जैसे 7.85 या फिर 4.682 एंड सो ऑन. नेक्स्ट हेडिंग इज डेसिमल प्लेसेस. द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ इट्स places. For example, if we write here 5.263, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट प्लेस जो है वो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है. यानी कि 5.263 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस. इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें 4.26, देन हियर वी हैव 2 numbers after the decimal, so the decimal place in 4.26 is 2. Next we have a very important topic from the chapter decimal, that is like decimals and unlike decimals. दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं, पहला जिसे हम like decimal कहते हैं, दूसरा जिसे हम unlike decimal कहते हैं. होता क्या है दोनों? तो like decimals की डेफिनेशन समझते हैं कि decimals having the same number of decimal places are called like decimals. यानी कि हम अगर दो decimals कंसिडर करते हैं A B, 15.23 एंड 17.28, ठीक है. तो अगर डेसिमल के बाद जो नंबर है, यहाँ पे कितने, 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, तो अगर डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है दैट इज़ इक्वल, देन वी से दैट द डेसिमल्स आर लाइक डेसिमल्स. फॉर एग्जाम्पल हियर ऑल्सो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं और यहाँ भी 2 नंबर्स हैं, यानी कि ये लाइक डेसिमल्स हैं. ऐसे अगर ले लें 2.7 और 3.5488, तो ये दोनों लाइक डेसिमल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर है. तो अगर डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं वो बराबर होते हैं तब उसको हम लाइक डेसिमल कहते हैं, और अगर बराबर नहीं होते हैं तब उसको हम
अनलाइक डेसिमल कहते हैं। तो अगेन वी विल स्टार्ट विद अनलाइक डेसिमल्स. The decimals not having the same number of decimal places are called unlike decimals. See here, this was the example of like decimal and this one was the example of unlike decimal. Like decimal में decimal के बाद के जो numbers हैं वो equal होंगे, यानी कि यहाँ पे 2 numbers हैं तो यहाँ भी 2 numbers हैं. लेकिन जब unlike decimal की बात करेंगे तो वहाँ decimal के बाद के जो numbers हैं वो बराबर नहीं होंगे. जैसे यहाँ पे 7 है, सिर्फ एक ही नंबर है और यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर है. So I expect that you all have understood these 4 topics. Now moving further, if we want to change the unlike decimal into like decimal, obviously we can do that. हम like decimal, मान लीजिए आपको कोई unlike decimal दिया हुआ है और इसको हम चेंज करना चाहते हैं like decimal में, तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए पहला नंबर आपको 2.7 दिया हुआ था और दूसरा नंबर 3.5488 ये है और अगला नंबर जो है वो है 2.7. तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस पेयर को आप लाइक डेसिमल में चेंज करिए. तो हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद के नंबर्स को से मतलब जो जितने टर्म्स हैं वो सेम करना है. तो 7 के बाद अगर हम यहाँ 3 0 बढ़ा दें तो यहाँ भी 4 नंबर है डेसिमल के बाद और यहाँ भी 4 नंबर है. अब ये क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल था पहले, अब ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल में चेंज हो गया. नेक्स्ट वी हैव राइटिंग अ डेसिमल इन एक्सपैंडेड फॉर्म. कि आपको कोई डेसिमल दिया होगा और आपको उसको क्या करना होगा? एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होगा. तो ध्यान से देखेंगे क्या करना है. सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे. टेबल में हमारे पास होगा डेसिमल पॉइंट, इसके साइड इस तरफ हमारे पास है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड सो ऑन. और डेसिमल के आगे की जो प्लेस है वो 10th. देखिए 10 और उसमें TH लगा हुआ है. टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ठीक है. अब डेसिमल की प्लेस को हमने यहाँ रखा तो इसको पहले मार्क करते हैं. ये 6 है यूनिट या वंस प्लेस पे, तो 6 यहाँ लिखा, 2 को टेंस प्लेस पे लिखा और 5 को 100th प्लेस पे. ऐसे ही 3 4 8 है तो 3 को हमने 10th के प्लेस पे रखा, 4 को 100th और 8 को 1000. अब 526.348 can be written as 500 plus 20 plus 6 plus 0.3 plus 0.04 and 0.008. अब इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सेम स्टेप में हम इसका कन्वर्जन करेंगे और फिर आगे के टर्म्स को लिखेंगे. इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं. मान लीजिए एक फ्रैक्शन लिखा है 56.23 और आपको इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. तो दिस कैन बी रिटन एज 50 प्लस 6 प्लस 0.2 प्लस 0.03 ऐसे लिख सकते हैं. नाउ 50 कैन बी रिटन एज 5 into 10, 6 can be written as 6 into 1, 0.2 can be written as 2 upon 10 and 0.03 can be written as 3 upon 100. फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 5 into 10 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 1 upon 10 प्लस 3 into 1 upon 100. ध्यान से देखेंगे 5 के लिए क्या लिखा है? 10. 6 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से. 2 को मल्टीप्लाई किया है 1 अपॉन 10 से और 3 को मल्टीप्लाई किया गया 1 अपॉन 100 से. इसी ऑर्डर में हम इनकी वैल्यूज़ भी लिखेंगे. तो अगर हमने यहाँ डेसिमल बना दिया तो अगला कॉलम होगा टेंस, फिर यहाँ हंड्रेड्स, इस साइड में वंस, टेंस. ठीक है. अब डेसिमल के इस साइड वंस के साथ यानी 1 से क्या मल्टीप्लाई किया हमने? कौन सा टर्म? 6. तो वंस प्लेस पे आ जाएगा 6, टेंस पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे इसी तरीके से 2 और यहाँ पे 3. तो आई होप कि इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कॉपी में सॉल्व कर लेंगे. अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज़ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन. तो मान लीजिए पहला डेसिमल जो आपको दिया गया है वो है 0.5. इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है तो हमने पहले इस डिजिट को लिख दिया. अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है? सिर्फ एक. तो नीचे हमने लिखा 1 0 और ये हो गया 1, यानी कि 0.5 को हम 5 अपॉन 10 लिख सकते हैं.
ऐसे ही अगर आपको लिखा गया 0.37, तो इसके लिए इधर से चलना स्टार्ट करेंगे। 37 लिखा है तो ये लिख दिया हमने। कितने नंबर्स है पॉइंट के बाद? 1 2, तो नीचे हमने 1 और 2, 2 0 बढ़ा दिया, तो 0.37 बराबर हो जाएगा 37/100 के। ऐसे ही तीसरा मान लीजिए लिखा हुआ है 5.48, ठीक है। तो डेसिमल को हटा के पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, 548, ठीक, ये कर दिया। अब डेसिमल के बाद कितनी नंबर्स है? 1 2, 2 नंबर है तो 2 0 लगाया और ये 1 लगा दिया, तो 5.48 को हम लिख सकते हैं 548/100। और एक और क्वेश्चन देख के चलते हैं, 63.208 नंबर्स लिखेंगे, 63208 अपॉन डेसिमल के बाद 1 2 3, तो हमने यहाँ 3 0 लगाया और इसको 1 यहाँ लगा दिया, तो इसको हम लिख सकते क्या? 63208/1000। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है कि 63.208 दैट इज 63208 अपॉन, ऐसे लिखा था। इसी चीज़ को अगर ये डेसिमल आपको यहाँ लाने को बोला जाए तो आप लिख सकते हैं 632.08। ध्यान देंगे कि डेसिमल को इस साइड में, किस तरफ? उसके राइट साइड में अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो जितनी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं उतना ही ज़ीरो नीचे आता है। यहाँ हमने सिर्फ एक पोजीशन से डिस्प्लेस किया, देखिए पहले पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो हम नीचे सिर्फ 10 लिखेंगे। इसी तरीके से 632, अब मान लीजिए यहाँ 0 के बाद आपको डेसिमल को डिस्प्लेस करना है तो आपने 0 लिखा 0.8, लेकिन अब 2 डिजिट आगे आया है तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अपनी एक्सरसाइज में मिलेंगे जिनको कि आपको सॉल्व करना है। Now the next type of question that we are going to have is converting a fraction into decimal. आपको फ्रैक्शन दिया होगा और उसको आपको डेसिमल में चेंज करना होगा। तो इसमें पहले तरीके का जो क्वेश्चन होगा, मान लेते हैं कि जो भी फ्रैक्शन हो वो इस तरीके का होगा कि डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा या तो 10 का कुछ पावर होगा, जैसे 10 हो सकता है या 100 हो सकता है या 1000, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। यानी कि डिनोमिनेटर में 10 है, मान लीजिए 2/10, या फिर 3/100, या फिर 4 मान लीजिए 40/1000, या फिर मान लीजिए 48, ऐसे करके नंबर्स होंगे। यानी कि पहले टाइप में वो क्वेश्चंस हैं जहाँ के डिनोमिनेटर में 10 है, या 10 का पावर 2 दैट इज़ 100, 10 का पावर 3 दैट इज़ 1000 एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख दिया, फिर नीचे कितना 0 है? 1, तो इधर से चलते हैं और एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, और यहाँ डेसिमल के पहले जैसा कि मैंने बताया 0 लिखना ज़रूरी है, तो हम 2/10 को लिख सकते हैं 0.2। ऐसे ही यहाँ नंबर है 3, तो हमने 3 लिख दिया, नीचे 2 0 है, तो इधर से चलना स्टार्ट करेंगे। एक नंबर है, ये हो गया दूसरा नंबर, क्योंकि 2 0 है तो यहाँ हमने 2 नंबर लिखा, इसके बाद लगा दिया डेसिमल, और ये हो गया 0.03। ऐसे ही यहाँ देखते हैं तो 48, नीचे कितने 0 हैं? 3, तो इधर से चलेंगे 1 2 3 और फिर यहाँ पॉइंट लगा के ये 0। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया हुआ है 587/10, तो क्या करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, नीचे 1 0 है, इधर से चलेंगे एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 587/10 को हमने 58.7 लिख दिया। Now the second kind of question will be somewhat कि जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में नहीं दिया, मतलब 10 100 1000 के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन हम कुछ टेक्निक लगा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम पहले के जैसा हो। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया 3/25 और आपसे कहा जा रहा है कि इसको डेसिमल में चेंज करो, तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होगी, हमें बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। अब देखिए 25 के टेबल में हमें पता है कि 100 आता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो हम 25 को 100 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन द न्यूमरेटर ऑल्सो मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 4। तो हम 3/25 को ही लिख सकते हैं 12/100, इजंट इट? वी कैन राइट लाइक दिस। अब 12/100 हम
जैसा कि हमने पहला केस पढ़ा, तो 12 लिखेंगे, नीचे 2 0 है, 1 2 यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये 0, एंड दिस इज आवर आंसर. Similarly, we have a third way of solving such kind of questions. Let us suppose we have written 29 whole 5 by 8. एक आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 8 प्लस 5. हमने इसको पहले चेंज कर दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 29 8 होता है 2 3 2 प्लस, तो ये फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा 237/8. अंडरस्टूड? व्हाट वी हैव डन, वी हैव चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज द फ्रैक्शन इन दिस फॉर्म टू दिस टाइप. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू डिविजन. यहाँ से हम दो तरीका अपना सकते हैं, या तो हम डिनोमिनेटर को 100 या 1000 या 10,000 ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें, या फिर हम क्या करें, डिविजन का यूज़ करें और डिवाइड कर दें. तो देखिए 8 है, अब 8 के बाद हम इसका डिवीजन जब स्टार्ट करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, माइनस किया, यहाँ बचा 7, ये 7 उतारा, 77 हो गया. 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72, माइनस किया 7 में से 2 गया, कितना बचा 5. अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ एक डेसिमल लगाया और यहाँ एक 0 बढ़ा दिया. ठीक है, ध्यान देंगे कि एक डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर आगे हम 0 खुद से बढ़ा सकते हैं, डेसिमल लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है फिर से, क्योंकि एक नंबर में हम एक ही बार डेसिमल लगाते हैं. तो 8 6 ज़ा 48, माइनस किया, कितना बचा 2, वापस 0 बढ़ाया, 20 है तो 8 2 ज़ा 16, फिर माइनस किया तो बचा 4, और फिर से 0 बढ़ाया, फिर हमें पता है कि 8 5 ज़ा होता है 40, तो माइनस किया, वैल्यूज़ जो है वो लास्ट में डिनोमिनेटर 0 आ गया, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है वो बराबर है 29.625 के. अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एडिशन ऑफ डेसिमल्स. मान लीजिए आपको पहला डेसिमल दिया हुआ है 9.67 और दूसरा डेसिमल दिया हुआ है 15.98. आपको करना है इन दोनों डेसिमल्स का एडिशन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है. यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. अगर सेम नहीं होती तो हम उनको सेम करते, यानी कि हम उनको लाइक डेसिमल्स में चेंज करते, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ये हो गया 15.98, ये हो गया 9.67. अब हम लिखेंगे यहाँ 9.67. यहाँ क्योंकि 9 जो है वो वंस की प्लेस पे है, तो हमने इसको वंस के नीचे लिखा है, एंड वी हैव अ प्लस साइन. अब हम यहाँ एडिशन कर सकते हैं. ठीक है, 7 और 8 ऐड करेंगे, कितना होगा, 15 का 5 बचा 1, 9 1 10, 6 16 का 6 बचा 1, 9 1 10, 5 15 बचा 1, दैट इज़ 2. ठीक है, डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद, तो यहाँ हमने कर दिया 25.65. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है मान लीजिए, और आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 73.1 में से आपको माइनस करना है 24.85, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ एक ही है, तो हमने 73.1 को 73.10 कर दिया. अब दोनों सेम हो गया, इसको लिख सकते हैं 73.10 माइनस 24.85, और इसको सॉल्व करेंगे कैरी ले करके, तो यहाँ आएगा 5 2. ठीक है, फिर यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 8 और 4, इधर से डेसिमल लगाएंगे तो 48.25. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो योर होमवर्क इज़ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 4A एंड 4B. इन दोनों एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं करने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करिए. बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको डाउट है, तो उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में. ठीक है, थैंक यू क्लास.